Class. Today our new topic, exponent of real number. This topic we have done in class 8th also, right? Let's start our topic, that is exponent of real number. We also called exponent and power. Here in this topic it is given a power n. It means a is your base and n is your power. These two are the given. A is your base, n is your power. We can take the example here, 2 power 3. Here 2 is your base and power is your 3. It means power is 3. It means you have to multiply 3 how many times? You have to multiply 2 how many times? You have to multiply 2 3 times. Got it? Similarly, it could be not only it could be a number, no, it could be a whole number, it could be a fraction also. We can take an fraction also. आपका एक fraction भी होता है. That is fraction is your -3/4 and the power is 5. Power is 5. Then it means we have to multiply the base how many times? 5 times we have to multiply. There are some important laws of rational exponent. These we have done it also. Again we are revising it. You can see here the first very important laws we can see here, that is when bases are same. When bases are same, right, and they are in multiply, they are in multiply, right, then the power get added. Got it? If bases are same and they are in multiply, power get added. It is here the base is a into a, clear, and power m and n. Then it overall become a m plus n. We can take the example here, 2 power 3 into 2 power 2, it become 2, 3 plus 2, and the power answer become 2 power 5. Next, same, when bases are same and they are in divide, bases are same, they are in divide, then power get subtract. Example, 5 की power 3, 5 upon 5 square, it become 5, 3 minus 2 is equal to 5 1, and 5 की power 1 means 5. Any number, right, that do not have any power, it means 1. Next, when if there is, right, bracket and base is there, base power is there, and bracket is closed, again a power, and it means a number having power and again a power, then the power get multiply itself, right? You can see example, 3 square, and here 3, then it become 3, 2 into 3, it become 6, 3 power 6 the answer will be. Next, if power is in negative, if power in negative, then always make power positive by reciprocal it. आपको उसको चेक करना है, a की पावर है, you have to write a n होगा, right? We can take example 6 minus 1, it becomes 1/6. और another example, अगर if fraction is already power negative, then again reciprocal it, इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, 6 की पावर 1 बन जाएगा. It's clear? It is not necessary always the power is 1. It could be 8 power minus 2. So we can make it 8 upon 8 square. Let's go ahead. Now, if there are two base and they are having same power, then the power get distributed. Here are two base, a and b. The power is m. Then the power get distributed, a power m and b power m. Here example we can take 5 into 7, power is 2, that is 5 square into 7 square. Let's go ahead. A upon b, the power is m, then the power get again distributed, a power m upon b power m. And we can take the example 5 upon 3, the whole bracket close and the whole power is 3, then the power get distributed 5/3 and 3/3. Next, again, any number power positive, right, any number power is 0, right, any number power is 0, then it is equal to always 1. It means 8 power 0 is equal to 1. Even if we are having 100 power 0 is equal to 1. These are the some important identities. Remember, if you know all these identities, there are 6 identities. If you are able to, right, memorize and, right, learn by heart, then we can do exponent question easily. Let's do some example of exponent. There are some different types of example, we will do one by one. Let's start some example of exponent. First example, you can see here, this is your type first. You can see
it is given 64 power 1 by 3. It is clear, 64 power 1 by 3. Please note it down one things, remember always the power is 1 by 3. Always remember, right? आप मैक्सिमम केस जो नंबर आपके ब्रैकेट के अंदर है, ये नंबर किसी न किसी ऐसे नंबर का, राइट, इसका कोई पावर ऐसा होगा जो इस पावर से मल्टीप्लाई होगा और कट सकता है। जैसे कि 64 है, 64 किसका, हम 4 का क्यूब होता है, 64 इज 4 क्यूब, और बाहर कितना लिखा पावर 1 by 3। अब हमारी इसमें आइडेंटिटी लगी, व्हेन नंबर इज सेम, right, and power is 3, and again the power is here, then the power get multiply. You remember the which identity the identity which are using here, a m and the power n, the whole part आपकी इसमें वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो इट बिकम a m into n पावर लग रही है आपकी। तो यू कैन सी हियर, तो आपको देखो मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल एंड इट बिकम 4। नेक्स्ट 125। अब नेक्स्ट पार्ट, इसमें देखो, इसमें देयर आर टू आइडेंटिटीज दे आर अप्लाइंग, वी आर अप्लाइंग हियर। फर्स्ट द नंबर इज नेगेटिव, नेगेटिव को आपको क्या बनाना है, मेक इट पॉजिटिव रेसिप्रोकल करके। देन आई टोल्ड यू कि पावर कितनी है, 1 by 3 है, द पावर इज 1 by 3, पावर 1 by 3 है। अब 1 by 3 और ये नंबर कितना आपका 125 है, देन आई नो कि इट इज़ द 5 की पावर क्यूब मीन्स 125, देन 3 and 3 कैंसिल हो गया, द आंसर बिकम 1 by 5। ऑलवेज रिमेंबर जो अंदर का जो नंबर होगा वो किसी न किसी का पावर ऐसा होगा जो बाहर की पावर से कैंसिल होगा आपके मैक्सिमम केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 पावर इज -2 by 3। यू कैन सी अगेन द नंबर इज नेगेटिव, ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव ऑलवेज। फर्स्ट पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव कैसे बनेगा, रेसिप्रोकल करके, राइट। बन गया आपका 1/27 ब्रैकेट होल पावर 2 by 3। अगेन यू कैन सी इट इज 3 है, एंड अंदर नंबर क्या है 27, एंड रिमेंबर 27 इज क्यूब ऑफ 3, वी कैन राइट 3 पावर 3 into 2 by 3, एंड 3 कैंसिल, आपका इट बिकम 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, एंड द आंसर बिकम 1/9, राइट। आंसर बिकम 1/9। प्लीज मेक इट करेक्शन हियर, इट इज़ 1/9 आंसर आएगा, यहाँ पर 1 आना चाहिए, इसका 1 मिसिंग है, राइट। 1/9 इज आंसर इज हियर। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पार्ट इज 64/25 एंड द पावर इज -3 by 2। फर्स्ट रूल इज मेक द पावर पॉजिटिव, ट्राई टू मेक पावर पॉजिटिव, देन वी हैव टू रेसिप्रोकल इट। 25 ऊपर, 64 नीचे आ गया, राइट, इट बिकम 3 by 2। मुझे मालूम है नीचे कितना है, 2 है, नीचे कितना है, ये 2 है, तो यहाँ 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो यू कैन सी 5 स्क्वायर इंटू 3 by 2, 2 से 2 कैंसिल, राइट। हियर बॉटम में 8 स्क्वायर इंटू 3 by 2, अगेन 2 से 2 कैंसिल, आपका कितना बन जाएगा 5 by 3 अपॉन 8 by 3, एंड यू नो 5 by 3 अपॉन 8 by 3 इट बिकम कितना होता है 125/512। लेट्स सेकेंड टाइप क्वेश्चन we will do ahead. See the second type question. Each and every type question, they are very important. See clear, careful, clear. It is now √4 power -3, right। पहले आप एक चीज़ ध्यान देना कि एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। इफ़ एनी नंबर इज पावर रूट, सपोज मान लीजिए 2 है, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 2 की पावर 1 by 2 लिखता हूँ। कि देखो ये स्क्वायर रूट है, यानी कि हम इसको 2 लिखते हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 2 1 by 2। जरूरी नहीं कि आपके इसके अंदर कुछ भी होता है, 34 आ गया, तो आई कैन राइट 34 1 by 2 ऐसे लिखता हूँ। सिमिलरली अगर आपको कोई ऐसा दे दिया 6 एंड बोला पावर ये क्या है, ये 5th है, इट मीन्स इट इज़ अ 5th रूट। 5th रूट कभी हमने पढ़ा ना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, नाउ इट इज 5th रूट, तो इसको वी कैन राइट x की पावर 1 by 5। क्लियर। सिमिलरली यू हैव डन दिस वन, आपने ये पढ़ा है, दिस इज क्यूब रूट, राइट। वी कैन हियर ये 3 है, और यहाँ पर मान लिया कि ये ऐसे लिखा है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट बोलते हैं, टॉप पे मेंशन होगा, यानी कि इट इज योर क्यूब रूट। इट मीन्स आई कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म ऑल्सो, दीज टू आर सिमिलर, these two are similar।
Now see here, same here, the case is here, it is रूट फोर माइनस थ्री, राइट. लेट्स पहले ये जो रूट फोर है इसका रूट उठाओ, रूट कैसे हटेगा, इट बिकम रूट फोर का हम क्या लिखते हैं 1.2. तो यानी कि इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा, ऐसे 4 पावर 1.2, और ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, -3 से, तो कितना बन गया 4 -3/2. तो ये इस तरह आपका ये यहाँ पर डायरेक्टली लिखा गया है 4 -3/2. यू नो 4 किसका स्क्वायर है, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 2 स्क्वायर इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल, इट बिकम 2 -3 एंड लास्ट में मेक द पावर पॉजिटिव एंड योर आंसर इज 1/8. Similarly, next here it is given root 4 power -7 and there is no sign, तो it means बीच में क्या साइन होगा, मल्टीप्लाई होगा, and root 2 minus power root 2 and the power is -5. तो फर्स्ट रूल क्या है, पहले रूट उठाओ आप दोनों केस में, तो इट बिकम 4 -7/2 एंड इट बिकम 2 -5/2. अब 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड 2 का तो कुछ स्क्वायर नहीं है, तो इट बिकम 2 5/2 ओनली, 2 5/2. नाउ नेक्स्ट आफ्टर को इट बिकम माइनस, ये 2 पावर 7 हो गया, राइट, एंड इट बिकम 2 पावर -5/2. बोथ नंबर आर इन नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं, तो हमें क्या करना है, हमें मेक द नंबर पॉजिटिव, यानी पावर को पॉजिटिव लानी है, तो रेसिप्रोकल हो गया 2 की पावर -7, तो रेसिप्रोकल कितना बन गया 1/2 की पावर 7. सिमिलरली 2 की पावर -5/2 को रेसिप्रोकल किया, इट बिकम 2 पावर 5/2. अब नाउ बेसिस सेम, तो इट बिकम 2 7 + 5/2. टेक द एलसीएम, एलसीएम लोगे तो आपका आंसर सॉल्व कर कितना आएगा 2 19/2 आंसर आ रहा है. लेट्स गो हेड नाउ द टाइप थर्ड क्वेश्चन. Each and every type question they are very important, and from this chapter there is a question always asked in competitive exam also. See now next question, 25 power 3/2 into 243 power 3/5, 16 power 5/4 and 8 power 4/3. ऑलवेज रिमेंबर, ये जितनी पावर के ये नीचे 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो अंदर का नंबर इसी का कोई पार्ट होगा, इसी पावर में बन के आएगा. जैसे कि आपका ये यहाँ 2 है, तो अंदर आई कैन राइट 5 का स्क्वायर होगा, क्लियर. और यहाँ पर कितना है 243 है, 243 किसका होगा, ये कितना है नीचे 5 है, यानी कि ये कटना चाहिए, तो इसको आप अच्छा एलसीएम से इसको निकाल सकते हो. ये ऐसे तो पहले आप 3 से अप्लाई करो, यहाँ 3 लिया, 381, 327, 3 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा. हाउ मेनी 3, 1 2 3 4 5. तो आई कैन राइट हियर 243 किसका होता है 3 की पावर 5, राइट, एंड 16 इज 2 की पावर 4 एंड 8 इज योर 2 की पावर 3. नाउ यू कैन सी ये कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया, राइट. अब इट बिकम, अब कैंसिल होने के बाद क्या बन जाएगा आपका, इट बिकम 5 की पावर 3, राइट, 5 की पावर 3 एंड इट बिकम 3 पावर 3, इट बिकम 2 पावर 5 एंड 2 पावर 4. आप सॉल्व करो, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 5 3 की पावर 3 कितना होता है 127, 2 की पावर 5 कितना 32 and 2 की पावर 4 16. Multiply all and you will get this. Next question, that is simplify. Again an important question. It is given here 81/16 and the power is -3/4. Multiply by bracket power, bracket है फिर small bracket अंदर 25/9 and the bracket close power -3/2. Divide by 5/2 and the whole power is -3. Let's solve this part. How to this one, we can see क्या गिवन है 81 है, 81 को राइट इफ़ यू टेक द एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो 81 अगर आप ऐसे करोगे तो 81 आएगा 3 की पावर 4 आएगा, राइट, एंड मल्टीप्लाई बाय 3 -3/4. सिमिलरली 16 किसका होता है 2 की पावर 4, तो इट बिकम -3/4. देन मल्टीप्लाई साइन, देन इट बिकम 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर इंटू -3/2,
और 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर इंटू -3/2 एंड डिवाइड हियर ये नेगेटिव है, हमने यहाँ पर कोई कुछ सॉल्यूशन कुछ अगर कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो उसको हमने सीधा रेसिप्रोकल करके पावर क्या बना दी पॉजिटिव बना दी। लेट्स वी कैन सी है, देखो अब आगे क्या बना आपका, ये आ गया 3 की पावर -3 कैसे आया, ये 4 से 4 गेट कैंसिल 3 पावर -3, सिमिलरली 4 से 4 कैंसिल क्या बन गया 3 की पावर -3, हियर 2 से 2 कैंसिल राइट क्या बच गया 5 की पावर -3 एंड हियर 2 से 2 कैंसिल इट रिमेनिंग इज 3 पावर -3 एंड हियर 5/2 दैट इज 5 पावर 3 एंड 2 पावर 3। लेट्स राइट अब नाउ हियर वी हैव डन, अब ये जो नेगेटिव नंबर थे उसको हमने पॉजिटिव बनाया रेसिप्रोकल करके, नेगेटिव था पॉजिटिव बनाया रेसिप्रोकल करके एंड हियर व्हाट वी हैव डन, जो पावर थी पावर कितनी है 3 है, 3 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 5 में भी कर दिया 2 में भी कर दिया, तो इट बिकम 5 पावर 3 एंड 2 पावर 3। नेक्स्ट स्टेप इज योर ऑल आर इन मल्टीप्लाई, तो ओपन द ब्रैकेट और मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या दिख रहा है आपको 2 की पावर क्यूब से कट गया आपका, 3 पावर 3 से कट गया राइट, अब 5 पावर क्यू से 5 पावर क्यू कट गया, तो ऑल आर कैंसिल ईच द एंड व्हाट इज रिमेनिंग लेफ्ट, द आंसर इज 1, आंसर हाउ मच कितना है 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर सीयर, क्या गिवन है नेक्स्ट पार्ट, रूट इज गिवन एंड इनसाइड रूट x पावर -2 एंड मल्टीप्लाई बाय y क्यूब, हाउ टू सॉल्व दिस वन, फर्स्ट मेक द पावर पॉजिटिव राइट, इसमें अंदर अंदर है तो अंदर पावर पॉजिटिव बना दे, क्या क्या रूट y अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, रूट y अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव डन, हमने रूट का हटाया और रूट को वी कैन राइट हम क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, क्योंकि देखो ये स्क्वायर रूट है तो इसलिए यहाँ पर कितना है 1/2 है, जितना नंबर ये लिखा रहेगा उतना ही यहाँ पर आएगा, इट बिकम पावर इज हाफ। नाउ डिस्ट्रीब्यूट द पावर इन बोथ y पावर 3/2 एंड x पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल, योर आंसर इज y पावर 3/2 अपॉन x। नाउ नेक्स्ट CO देयर इज रूट, अब जैसे देखो ये 4 लिखा है इट मीन्स ये 4th रूट बोला है और इसके अंदर एक रूट और है वो है क्या है क्यूब रूट और अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमने पहले अंदर का लिखा एक्स स्क्वायर लिखा और ब्रैकेट बनाया और उसका क्या बना दिया 1/3 बना दिया कि वो क्यूब रूट था, देन अगेन मेक अ बिगर ब्रैकेट और जो बाहर वाला 4th रूट है उसको हमने क्या लिया 1/4, यू कैन सी हमारी आइडेंटिटी है व्हेन बेसिस आर सेम और पावर अलग अलग है, एक m है एक n है राइट MNO, देन ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे होंगे 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, 2 4 जा कट गया तो कितना बच गया 2 बच गया, तो 3 2 जा 6 एंड द आंसर इज 1/x की पावर 6। नेक्स्ट इट इज रूट x एंड द पावर इज -3/2, हम मल्टीप्लाई बाय रूट y पावर 4 एंड दिस पार्ट इज इन डिवाइड रूट x y -2, अब यू कैन सी पहले हमने यहाँ से रूट उठाया तो इट बिकम x की पावर हाफ, कितना बन गया x की पावर हाफ, और किससे मल्टीप्लाई हो गया -2/3 से, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो सकता है आपका -1 बन जाएगा। सिमिलरली y की पावर 4 है और y का स्क्वायर रूट है तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर कितनी आएगी हाफ आएगी, तो y की 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो यहाँ से कट जाएगा इट बिकम 2 y का स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन ये डिवाइड में तो डिवाइड में लाइन आ गई अपॉन में आ गई एंड x पावर -हाफ और यहाँ से रूट हटेगा और रूट दोनों ही आ गया पावर हाफ, अब यहाँ से हमने क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो वाले स्टेप में, तो इट बिकम x की पावर -1/3 जो यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ y स्क्वायर आ गया कॉटेड, यह पावर गेट डिस्ट्रीब्यूटेड x का स्क्वायर इसमें आ गई, ये हाफ यहाँ आ गया एंड हियर y इज इक्वल टू -हाफ इंटू -हाफ क्या बन गया -1/4। नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी, अब देखो हमने क्या किया यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी हैव डन, ये जो y नेगेटिव है y को ऊपर लेके इट बिकम पॉजिटिव, x नेगेटिव था इसको नीचे लेके क्या बन गया आपका पॉजिटिव, तो यू कैन सी ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर इंटू वाई की पावर 4 और ये नीचे बन जाएगा x 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमारी सेम आइडेंटिटीज बेसिस आर सेम दे आर इन मल्टीप्लाई, तो पावर गेट एडेड, ये मेरा 4 है ठीक है ध्यान देना।
पावर गेट एडेड। सिमिलरली नीचे भी है बेस है सेम एंड दे आर इन पावर गेट एडेड। तो हियर क्या बन जाएगा आपका, राइट, यू कैन सी हियर, ये देखो अब आप सॉल्व करोगे इसे, आफ्टर सॉल्विंग तो आप एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा, 4 टू जा 8, 8 + 1 9/4 y की पावर आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का एलसीएम विल बी 6, राइट। तो अब सॉल्व करो, इट बिकम ये हो जाएगा 3 2 जा और ये 2 3 जा, तो 3 + 2 कितना आएगा 5, तो 5/6। तो आपका आंसर कितना आएगा x 5/6। लेट्स मूव अहेड। नाउ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, next type is very important again, find the value of x, that this question you have done earlier also, very important for competitive exam purpose। find the value of x निकालना है, आपके x की निकालनी है। क्या गिवन है 5x - 3 एंड 3 2x - 8, ये किसके इक्वल है, 2 to 5 के इक्वल है, राइट। अब मुझे मालूम है इफ रिमेंबर इट इज द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर है, 15 का है, गॉट इट। अब 15 को ब्रेक करते हैं हम, 5 × 3 में ब्रेक करते हैं। यू कैन सी 5 पावर x - 3 और 3 पावर 2x - 8, ये इसमें है। और जब भी x की वैल्यू निकालनी होनी चाहिए तो हम पे कंपेयर होना चाहिए। मीन्स अगर मुझे कोई, अगर ये गिवन है 5 की पावर x = 5 की पावर 2, ऐसे आपका इक्वल टू आना चाहिए और बेस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्यों, इससे बेस से बेस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और x = 2 हो जाएगा। ऐसे यही एग्जाम्पल हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या कर दिया, ये इस तरह कर दिया, ये 15 को ब्रेक कर दिया, 5 × 3 और होल स्क्वायर। अब अगेन यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या ब्रेक हुआ कि हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये 2 कहाँ चला गया, 5 में चला गया, 2 कहाँ चला गया, 3 में भी चला गया, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। नाउ कंपेरिजन हो गया। अब हम कंपेयर, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें कंपेयर करना है। कंपेयर हमेशा सिमिलर चीज़ के बीच में होता है। तो कंपेयर किसके बीच होता है, ये 5 है तो 5 का कंपेयर किसके साथ होगा, 5 स्क्वायर के साथ होगा। ये 3 है, इसका कंपेयर किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, तो राइट। तो हियर वी हैव डन कंपैरिजन। लेट्स सी, ये देखो कंपेयर में क्या कर रखा हमने, पहला हमने कंपेयर किया 5x - 3 = 5 स्क्वायर, बेस आर सेम, दे आर इन इक्वल, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इट बिकम x - 3 = 2। अब 3 को यहाँ भेजो, कितना बच गया, 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यानी अगर मेरा 5 से x की वैल्यू 5 आ रही है तो 3 से भी x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x की वैल्यू इट रिमेन सेम 5 ही आना चाहिए। तो हमने कंपेयर ये कर दिया, 3 2x - 8 = 3 स्क्वायर, राइट, बेस आर सेम, दे गेट कैंसिल, 2x - 8 = 2, राइट। अब इसको यहाँ भेजो तो इट बिकम 10, तो और 2x = 10 और ये कट गया, आपको कितना बच गया, 5 हो गया, राइट। लेट्स गो अहेड। नाउ टाइप 5th, अगेन इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या गिवन आपके, इट इज़ गिवन हियर x की पावर a अपॉन x की पावर b, x पावर a एंड x पावर b एंड द होल पावर इज a² + ab + b स्क्वायर। फिर डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, डॉट मतलब आपके मल्टीप्लाई होते हैं। x की पावर b अपॉन x की पावर c, b² + bc + c स्क्वायर, देन x की पावर c अपॉन x की पावर a, c² + ac + a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर। और आपको ये प्रूव करना है, ये वाले क्वेश्चन में आपके प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है कि आपको इसको प्रूव करो ये 1 होना चाहिए। तो सी कैसे करेंगे हम, लेट्स सी। आपका अब देखो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, व्हेन बेसेस आर सेम दे आर इन डिवाइड, पावर गेट सबट्रैक्ट। तो यू कैन सी हियर बेस आर सेम, बेस क्या है x और x है, पावर क्या है a और b, तो दे गेट सबट्रैक्ट। तो कितना बन गया, x a - b बन गया, और ऊपर की पावर इट रिमेन सेम, राइट। तो यहाँ भी यही केस है, x b - c सेम, सेम हियर x c - a एंड अदर रिमेन सेम। अब आपका ये क्या बन गया, a - b, इट बिकम a - b ब्रैकेट a² + ab + b स्क्वायर। एंड रिमेंबर ये एक किसी का फॉर्मूला होता है, राइट। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर जब आप पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आपने पढ़ना है a³ - b³ पढ़ना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b, राइट, a² + ab + b³, सॉरी a² + ab + b स्क्वायर, गॉट इट। ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, a³ -
बी क्यूब। तो वही चीज़ यहाँ पर ये बन गया, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी, दैट इज, अगर इसको जूम करो यहाँ देखो, दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। इट्स क्लियर। नाउ सिमिलरली ये जो किसका है, अगेन ये भी वही है, बी माइनस सी अंदर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर दिख रहे हैं, यहाँ ए और बी था, यहाँ बी एस सी, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब का। अगेन थर्ड पार्ट में सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ये पार्ट और अगेन ये सिमिलर पार्ट सेम आ रहे हैं, राइट, ओनली अल्फ़ाबेट चेंज है आगे पीछे है। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। नाउ वी आर हैविंग, राइट, ये भी आपका एक्स है और एक्स है, और डॉट मतलब क्या होता है, इट मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो व्हेन बेस आर सेम दे आर इन मल्टीप्लाई, तो पावर गेट एडेड, पावर आपस में क्या होती हैं, दे गेट एडेड। तो हमने ये कर दिया देखो, तो ये जो आपका स्टेप है, ये वाला स्टेप, एक्स कॉमन ले लिया और पावर ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू और प्लस, और लास्ट में एक चीज़ और आना चाहिए, यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर आना चाहिए आपका सी क्यू माइनस ए क्यूब, ये आना चाहिए, राइट। प्लीज़ नोट डाउन, यहाँ पर एक करेक्शन की जरूरत है। पहले आ जाएगा ए क्यू माइनस, ये इसका टर्म आ जाएगा, फिर ये वाला टर्म यहाँ पर आ गया और ये वाला टर्म ये लिख दिया इसमें, राइट। अब देखो इसमें ये क्या बन जाएगा आपका, तो इट बिकम, तो हमारा यहाँ पर लिखा था मैंने सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये प्लस साइन आएगा, तो ए क्यूब और ए क्यूब आपस में क्या जाएगा, कैट कैंसिल, बी क्यूब कैट कैंसिल और सी क्यूब कैट कैंसिल। तो आपका लास्ट में क्या बच के आएगा, इट बिकम एक्स की पावर ज़ीरो, और एक्स की पावर ज़ीरो कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू 1। स्टार्टिंग में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, एनी नंबर पावर ज़ीरो इज़ 1। प्लीज़ मेक करेक्शन हियर, राइट। यहाँ पर एक छोटी मिस्टेक होगी, ये प्लस आएगा और यहाँ पर सी क्यूब माइनस ए क्यूब आना चाहिए, तब कंटिन्यू पूरी लाइन बन के आएगी। मेक ए करेक्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, इसी पे बेस सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या गिवन है आपका, एक्स एंड द पावर इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, एक्स बी प्लस सी द होल स्क्वायर एंड अगेन डॉट एक्स सी प्लस ए होल स्क्वायर। तो पहले हमने क्या किया, ये जो टू था, देखो ये एम हो गया, ये एन हो गया, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, टू ए प्लस बी बन गया, राइट। सिमिलरली सब में टू सी प्लस ए, टू बी प्लस सी और टू ए प्लस बी बन गया। और नीचे हमने क्या किया, एक्स ए डॉट एक्स की बार बी डॉट एक्स की बार सी, हम पावर 4 है और ये पावर 4 सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्स की बार 4 है, एक्स की बार 4 बी, एक्स की बार 4 सी कर दिया, राइट। अब आपने क्या करना है कि व्हाट यू हैव टू डू, अब व्हाट वी आर डूइंग हियर, हमने इस टू को अंदर बुलाया, टू इंटू ए टू ए, टू इंटू बी टू बी, सो टू इंटू बी टू बी, टू इंटू सी टू सी, टू इंटू सी और टू ए, राइट। अब यू कैन सी नेक्स्ट स्टेप, बेस आर सेम दे आर इन मल्टीप्लाई, देन पावर गेट एडेड, तो ऐड करो एक्स की पावर, ये देखो 2a प्लस 2a कितना बन गया 4a, 2b प्लस 2b कितना बन गया 4b, 2c प्लस 2c कितना बन गया 4c, और नीचे कितना है x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, ये पार्ट है ये पार्ट दे आर सिमिलर, राइट। तो आपस में दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गए, अब कितना बच गया 1 बच गया आपका, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब नाउ हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज टाइप 6 क्वेश्चन, टाइप 6 अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। और ये ऑलवेज दे आर आस्किंग 3 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं, आप ये क्वेश्चन निकालें, टाइप 6 वाले क्वेश्चन। क्या गिवन है, इफ 9 पावर n इंटू 3 स्क्वायर, 9 की पावर n है और मल्टीप्लाई किससे 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर माइनस n बाई 2 इंटू -2 माइनस 27 पावर n अपॉन 3 पावर 3m इंटू 2 पावर 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1/27 के इक्वल है।
और हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट m माइनस एन इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। ऑलवेज रिमेंबर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो यू कैन सी ये सारे के सारे टर्म कैसे हैं। देखो 9, हम 9 किसके फॉर्म में लिखते हैं, वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ 3 ऑलरेडी है, 3 है। 27 भी किसके फॉर्म में आता है, 3 के फॉर्म में आता है। 3 की पावर 3 ऑलरेडी है, ये 2 है, और यहाँ पर भी कितना है 27 है। तो ये सारे के सारे किसके टर्म में आते हैं, वी कैन राइट इन टर्म ऑफ 3। इसका रीज़न है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको जो छोटा नंबर है ना उसके फॉर्म में लेके आना है। जैसे ये 9 है, 9 को आई कैन राइट 3 का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई हो गया 2n हो गया, ये 3 स्क्वायर यहाँ आ गया, और यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2 इंटू -n, तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपका। और -27 को हम क्या लिखते हैं, 3 पावर 3, और ये मल्टीप्लाई होकर 3n बन जाएगा, और नीचे ये आपका इट रिमेन सेम। नाउ अब यू कैन सी हियर 3 पावर 2n, और ये जो -n था, माइनस ये जो आपका कैंसिल हुआ था राइट, ये जो पार्ट आपका राइट -1 और जो -1 वाला पार्ट है, क्लियर, ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो इट बिकम 3 पावर n राइट। और ये हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर को अलग लिख दिया, यू कैन सी हियर ये 3 स्क्वायर ये हमने अलग से लिख दिया। इसका रीज़न राइट, ये क्वेश्चन में हमने वाई वी हैव सेपरेट, और -3n। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 पावर 2n इंटू 3 पावर n, वैन बेसिस आर सेम पावर गेट एडेड, पावर ऐड हो जाते हैं, तो कितना बन जाएगा, 3 पावर 3n इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 पावर 3n, क्लियर, अपॉन इट रिमेन सेम, और 2 का क्यूब कितना कर दिया मैंने, 8 कर दिया, कितना हो गया, 8 हो गया आपका, इज इक्वल टू 1/3 पावर 3। 27 को वी हैव चेंज कितना कर दिया, 1/3 पावर 3 में कर दिया आपका। अब यू कैन सी वी कैन टेक कॉमन 3 पावर 3n, तो 3 पावर 3n यहाँ पर कॉमन ले लिया राइट, यहाँ पर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, 3 का स्क्वायर 9 -1 राइट, और नीचे 3 पावर 3n इंटू 8। नाउ when you can see this part, when bases are same right, they are in divide, then power get subtract, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर होगी 3n माइनस 3m हो गया, इंटू 9 - 1 8 हो गया, तो 8/8, ये आपस में ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, दे गेट कैंसिल, यानी इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके चले गए तो इट बिकम 3 पावर -3। अब यू कैन सी ये जो पार्ट है ये तो कैंसिल हो गया आपका, ये यहाँ से हट गया राइट, तो क्या बच गया, 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 पावर -3। अब यहाँ से 3 कॉमन लिया ऊपर, तो 3 ब्रैकेट n माइनस n इज इक्वल टू -3, वैन बेसिस आर सेम दे आर इन इक्वल टू राइट, तो ये आपस में क्या हो गए, दे गेट कैंसिल, क्लियर। नाउ अब कैंसिल हो गए तो हमारा क्या बच गया, ऊपर के ये दोनों पार्ट बच गए, बस ये दोनों पार्ट बच गए राइट, तो 3n माइनस 1 इज इक्वल टू -3, ये 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, -1 आ गया, तो n माइनस m इज इक्वल टू -1, सबके आगे हमने क्या लगा दिया, पूरे का देखो हमें m को आगे लाना है, m को यहाँ भेज दिया, n को यहाँ भेज दिया, और n को यहाँ भेज दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इट बिकम 1 यहाँ आएगा तो 1 बन गया, बिकम पॉजिटिव, m वहाँ गया पॉजिटिव, और n का साइन पॉजिटिव था उधर गया तो नेगेटिव, वो नेगेटिव बन जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, m माइनस n इज इक्वल टू 1 हो गया। इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, हमने क्या कर दिया, इसको पूरे को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो n का साइन क्या है, प्लस, तो माइनस बन जाएगा, m का साइन क्या है, माइनस, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 1 का साइन क्या है, माइनस, क्या बन जाएगा, प्लस। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो दिस वी हैव प्रूव्ड। नाउ after this topic is over, now there are some practice question, do all these question right, these are very important question right, again do all these question, practice question, do it and answer you can ask me later on. Got it? Yes, from today your chapter number 1 is over right, in next class we will do our next new chapter, chapter number 2 right, do these question again and again. Got it? Thanks a class. Thanks a lot. Thank you.